Good day, dear friends. Am I audible? Hello? Yes, ma'am, audible. Yes, okay. Okay, good morning and again welcome. आज एक चाहूँगी लेक्चर शुरू करने के पहले I would like all of you to forgive me for my sins or any words or by deeds if I have hurt you anywhere. कहीं पे मैंने आपका दिल दुखाया होगा तो जैन परंपरा के हिसाब से आप सबसे मैं मच्छामी दुक्कड़म बोलती हूँ. मिच्छामी दुक्कड़म मतलब सॉरी बोलना. सॉरी बोलना मतलब साल भर में अगर हमसे कुछ भी गलतियां हुई होगी, अभी साल भर से तो नहीं पर मैं आपके साथ जितने महीनों से जुड़ी हुई, एक महीने से और जितने दिनों से हम लोग कनेक्टेड है, तो उसमें अनजाने से मेरे से कोई गलती हुई तो सबसे क्षमा याचना करती हूँ. सॉरी. Okay, so starting towards the lecture of object-oriented programming. In the last lecture, we had started with structures and union, and little bit of confusion was there in certain students' mind. So just having a approximate review of that how it is going to come. एंड हाउ इट इज. एक थोड़ा अटेम्प्ट मैंने किया है, जिसको नहीं समझा है, जिसको समझा है वेरी गुड, बट दोज हु हैव नॉट अंडरस्टूड वी आर जस्ट गोइंग टू हैव अ स्नैपशॉट हाउ इट इज अकरिंग. ओके, सो today's session in your, I'll just go for the presentation. So we have seen about the user defined data type, that is union, in the last lecture about the syntax, declaration, union, variable, similar to that of structure, variable, then how the accessing of members of union is done. And lastly, we had seen the difference between union and structure, that in case of memory representation only, there is a difference between union and structure. Just as structure takes memory allocation different for different variables, वैसे union takes memory common for all objects. So this we had seen in the lecture. Now we are considering about the understanding of difference between structure and union. Little bit faster way we are going to go, and then learn new user defined data type today, enumeration. So out of the 4 user defined data types, we have seen structure data type, we have seen union. Today we are going to see enumeration, and lastly there is class, through which we are going to start our C++ programming practice. Okay, तो class मैंने इसीलिए last में रखा क्योंकि class जो है ये
हर एक को कॉमन जो है दैट इज C++ के प्रोग्रामिंग में हर जगह यूज होगा, इसीलिए हम क्लास सबसे लास्ट ले रहे हैं. Now, consider the structure memory representation. Those who have not understood that what is the structure and what is union और उन दोनों में क्या difference है, ये confusion अगर हो रहा है तो उनके लिए ये memory representation के through I'm going to try to explain what is the difference. Now just see when I'm okay. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now when I'm seeing about structure memory representation, see initially जब आप memory में जाते हो, memory blank है, आपके पास कुछ भी नहीं है memory में, आपने एक प्रोग्राम लिखा और प्रोग्राम में आपने एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया, ठीक है. ये जैसे हमने पिछले इसमें देखा था, वी आर राइटिंग struct person int age character gender and I am having a name which is given a string data type. तो इस तीनों में से मैंने लिया. जैसे ही मैं ये करती हूँ तो मेमोरी में कोई भी असर नहीं होता है, मेमोरी रिमेन्स ब्लैंक. ओके, अभी तक कोई भी मेमोरी एलोकेशन नहीं हुई है स्ट्रक्चर को. भले ही आपने आपके प्रोग्राम में स्ट्रक्चर लिखा, सेमीकोलन दिया, डिक्लेरेशन हो गया स्ट्रक्चर का, बट जैसे ही ये स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन हुआ फिर भी मेमोरी में कोई भी चेंजेस नहीं है. जस्ट नोट ऑन द ब्लॉक चेंजेस क्या होने वाले हैं ब्लॉक में. अब आप क्या कर रहे हो, उसके बाद एक पर्सन लिया, सी दिस आई एम डिक्लेयरिंग अ पर्सन P1. जैसे ही मैं पर्सन P1 लिखती हूँ तो आप मेमोरी में चेंजेस देखते जाओ कि क्या हो रहा है. क्या हुआ, पर्सन P1 लिखते ही एक P1 वेरिएबल क्रिएट हुआ, ठीक है. तो मेमोरी में P1 के लिए एलोकेशन हुई, जो आप देख रहे हो कर्सर मेरा, P1 को एलोकेशन हुई. और P1 को कितनी एलोकेशन होगी, क्योंकि उसमें एज है जो कितना बाइट्स लेता है, 4 since it is integer. Secondly, it is checking gender. Gender is checking character which takes 1 byte. After that I am having name. Name is checking 8 bytes since it is string. तो इस तरीके से एलोकेशन होती है P1 के लिए inside the memory for a structure. So total how many bytes it is going to take? 13 bytes. Is it clear that age के लिए अलग से 4 बाइट, जेंडर के लिए 1 बाइट और नेम के लिए 8 बाइट, ऐसे हर एक के लिए अलग अलग बाइट्स क्रिएट हुई है, ठीक है. तो टोटल 13 बाइट्स फॉर अ स्ट्रक्चर. This happens only when I am creating person का variable P1. Now see the changes. Secondly, how it is going to happen when you access. अब ये structure होने के बाद आप ये समझो कि मैंने किया एक्सेस किया P1.age is equal to 10, ठीक है. थोड़ा चेंजेस देखो, मैं क्या कर रही हूँ, P1.age is equal to 10. जैसे ही मैं P1.age is equal to 10 दिख रही हूँ, मेरा मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन देखो, वहां पे चेंज क्या हो रहा है, एज की वैल्यू जो है इट हैज बीन रिप्लेस्ड विद 10. ओके, आफ्टर दैट आई एम डूइंग व्हाट, फिर से मैंने एक लिखा P1.name is equal to ABC. जैसे ही मैं P1.name is equal to ABC लिख रही हूँ तो नेम की वैल्यू क्या हो गई, ABC. So these are the changes which are happening, right? और वैसे ही मैं अगर P1.gender F या P1.gender M लिखूं तो वो क्या कर देगा, जेंडर के वहां पे M या F वैल्यू रिप्लेस कर देगा. Got this clear structure? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now see about union. Secondly, मैं union के बारे में बता रही हूँ कि union का memory representation कैसा है. अब let's start with union memory. तो ऐसे ही जैसे हमने struct declare किया था, वैसे ही मैं union को declare कर रही हूँ. तो जब मैं यूनियन को डिक्लेयर कर रही हूँ इनिशियली तो मेरे पास मेमोरी ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है. अब मैंने वैसे ही किया जैसे मैंने स्ट्रक्चर के लिए किया था. आई एम क्रिएटिंग अ वेरिएबल ऑफ पर्सन और मैं लिख रही हूँ पर्सन P1. जैसे ही मैं पर्सन P1 करती हूँ मेरी मेमोरी में P1 ये वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा. और स्ट्रक्चर में जैसे int age था, int age को कितना दिया था, 4 बाइट्स. तो आई एम गिविंग 4 बाइट्स टू एज, राइट. अब मेरे पास जेंडर है, जेंडर कितना बाइट लेता है, 1 बाइट. तो अलग से 1 बाइट क्रिएट करना चाहिए. बट दिस डजंट हैपन इन यूनियन. यूनियन क्या करता है, मेमोरी शेयर करता है, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए मेमोरी कॉमन रखता है. इसीलिए क्या होगा, अब 4 बाइट्स से के बाद अलग से 1 बाइट नहीं होगा. जो 4 बाइट्स की मेमोरी है उसी में जेंडर शेयर होगा. एक 1 बाइट की मेमोरी 4 बाइट्स में से किसने ले ली, जेंडर ने. अब थर्ड वेरिएबल आ रहा है स्ट्रिंग विच इज नेम.
एंड अब नेम जो है वो कितने बाइट्स ले रहा है 8 विच इज ग्रेटर देन 4 बाइट्स, इसीलिए एज की जो वैल्यू है दैट विल बी शेयर्ड विद अगेन नेम और थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। फाइनली कितनी बाइट्स एलोकेट होगी, totally 8 bytes of memory will be allocated. Is this clear? Got this difference? पहले जो था that was 13 byte, अब कितना हो रहा है 8 byte, क्योंकि यूनियन shares the memory address, memory it doesn't take the मेमोरी एलोकेशन शेयर करता है, वो अलग अलग से अलग अलग वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट नहीं करता है, और जिसकी सबसे ज्यादा मेमोरी है उतनी मेमोरी वो एलोकेट कर दिया। जैसे उसने पहले 4 ली, फिर एक जेंडर को शेयर किया, फिर जब नेम आया तो नेम की 8 थी, इसीलिए अब एक्सटेंड करके उसने 8 कर दी। So this happens in case of union. Now let's see about access, what is happening. अब मैं आपको थोड़ा एक जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था वो मैं आपको थोड़ा बताती हूँ कि what we had done. Okay. I'm just sharing this PPT with you all. Last lecture PPT. What we had done and what was the output of the union. So we had done a program of union and what was happening, see union का एक program जो हमने किया था, अब union के program में देखो union person लिखा, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, int age character gender, मैंने main start किया, मेन के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, पर्सन P1 क्रिएट कर रही हूँ और फिर नेम को वैल्यू दे रही हूँ, एज को वैल्यू दे रही हूँ और जेंडर को वैल्यू दे रही हूँ। सो सी व्हाट इज हैपनिंग, मैंने प्रोग्राम लिखा पर्सन P1, मैंने लिखा एंटर नेम P1, सॉरी इसके पहले का जो प्रोग्राम है वो बता रही हूँ। हाँ, तो मैंने किया P1 डॉट नेम, उसको एंटर किया, फिर बाद में एज ली और फिर जेंडर की वैल्यू ली, उसके बाद मैं एक एक को डिस्प्ले कर रही हूँ, नेम को डिस्प्ले कर रही हूँ, एज को डिस्प्ले कर रही हूँ और जेंडर को डिस्प्ले कर रही हूँ। तो जब मैं आउटपुट एक्सपेक्ट करती हूँ, आउटपुट जो है, नेम तो मैंने ABC 13 और F दिया था, लेकिन आउटपुट अलग आया F 102 एंड F अगेन। तो ये क्यों, why this abrupt output has been there, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने कुछ इनपुट अलग दिया था लेकिन अलग ही कुछ आया है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यूनियन जो है शेयर करता है मेमोरी, और वो मेमोरी क्या करता है, इसीलिए एक ही मेंबर एट अ टाइम यूनियन को यूज कर सकता है। इसीलिए क्या होगा, जब आप नेम को वैल्यू देने जाओगे तो जेंडर और जो एज है वो करप्ट हो जाएगा, वो वैल्यूज अगर पहले से दी हो गई तो वो ओवरराइट हो जाएगी। अगर मैं एज को वैल्यू देने जाऊं तो फिर नेम और जेंडर की वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो जाएगी। तो दिस हैपेंस, इसीलिए एक ही मेंबर एट अ टाइम एक्सेस हो सकता है यूनियन में। इसीलिए बोला था कि सोल्यूशन क्या है, इसके लिए आप क्या करो, P1 डॉट नेम लो, तुरंत उसको डिस्प्ले करो, एज लो, तुरंत उसको डिस्प्ले करो, फिर से जेंडर लो और तुरंत उसको डिस्प्ले करो। पहले प्रोग्राम में हमने क्या किया था, तीनों के वैल्यू पहले ली और एज की वैल्यू सॉरी बाद में डिस्प्ले की। ऐसा ना करते हुए जैसे अपने यूजर से लिया तुरंत उसको डिस्प्ले कर दो, तो दिस इज गोइंग टू क्लियर योर सोल्यूशन। ओके, नाउ लेट्स कम बैक विद the first program, today's lecture about, and resume today's lecture about union. So I hope you have understood that how union is going, right? अब आपके पास finally P1 में क्या हो रहा है, नेम ये वैल्यू है और 8 बाइट्स दी गई है। समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Please respond to students, those who have not understood kindly go through it, because ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जो मेमोरी में अफेक्ट हो रहा है। नाउ यस ही एक्सेस, जब मैं P1 डॉट एज कर रही हूँ, देखो मैं क्या कर रही हूँ, P1 डॉट एज, जैसे ही मैंने लिखा P1 डॉट एज तो क्या हुआ, नेम चला जाएगा और वहां पे क्या आ जाएगा, एज इज इक्वल टू 10। अब उसके बाद अगर मैं क्या करती हूँ, I'll write P1 dot name. अब अगर मैंने P1 dot name is equal to ABC किया तो age is equal to 10 क्या हो गया, चला गया। और अगर मैं वापस उसके बाद क्या करती हूँ, P1 dot gender M, तो क्या हो जाएगा, नेम चला जाएगा और जेंडर की वैल्यू आ जाएगी M। ओके,
तो ये होता है यूनियन में। और यूनियन में अब इस केस में देखो कि यूनियन का डिसएडवांटेज क्या है कि जेंडर को एक ही बाइट लग रही है, और जब जब जेंडर को वैल्यू देख रहे हो तो बाकी के 7 बाइट्स जो है वो फ्री है, ठीक है। अननेसेसरली वो क्या करके रखा है, लग नहीं रहा है, फिर भी उतने वेरिएबल्स वो, उतनी बाइट्स वो यूज करके रख रहा है। तो दिस इज अ वेरी बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ यूनियन। लेकिन एडवांटेज क्या है कि अगर आपके पास मेमोरी स्पेस कम है तो आप क्या यूज कर सकते हो, स्ट्रक्चर के बजाय आप यूनियन का यूज कर सकते हो। क्लियर नाउ? सो बेसिकली यूनियन कहाँ पर यूज होता है, तो जहां पर आप आजकल आप मोबाइल यूज करते हो, ठीक है। मोबाइल इज हैविंग अ माइक्रो प्रोसेसर, और उस माइक्रो प्रोसेसर में जो प्रोग्राम्स लिखने होते हैं वो क्योंकि मोबाइल की मेमोरी बहुत ही छोटी होती है, तो वहां पे जहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम होता है, जैसे वॉशिंग मशीन है, आपके पास माइक्रोवेव ओवन है, ऐसे केस में जहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लिखनी है, जैसे टाइमर होता है, ठीक है, अगर आपको टाइमर सेट करना है तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, आपका जो प्रोग्राम लिख रहे हो उसमें आप यूनियन का यूज कर सकते हो, क्योंकि मेमोरी वहां पे आपको एफिशिएंटली यूज करनी है। तो दिस इज हैपनिंग इन केस ऑफ यूनियन। गेटिंग दिस क्लियर? कहाँ पे यूनियन को यूज करना है, यूनियन को आप जहां पे एम्बेडेड सिस्टम्स होता है जनरली वहां पर आप यूज करते हो। इज दिस कंसेप्ट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you so much. Now we are going towards today's representation of enumeration. What is enumeration? Again, this is another user defined data type. अब इतने सारे अलग अलग डेटा टाइप कैसे हुए, क्यों हुए, ये देखो कि हमेशा क्या होता है, जब प्रोग्रामिंग करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, दूसरा कोई सोल्यूशन फाइंड करने जाते हैं। वैसे ही है, पहले सी के लोगों ने, सी जो जिसने बनाया था, तो सी ने क्या किया, स्ट्रक्चर को यूज करना शुरू किया। जब उसने स्ट्रक्चर बनाया तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स आई, इसीलिए फिर C++ में उसको यूज किया और उसमें देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स है, इसीलिए अब मुझे क्या करना है, नया डेटा टाइप निकालना है, उसने नए डेटा टाइप का नाम दिया क्लास। वैसे ही अलग डेटा टाइप है इनमरेशन। अब इनमरेशन ये डेटा टाइप क्या होता है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ इंटीग्रल कांस्टेंट्स। उसमें जो भी वैल्यूज होती है वो सारी कांस्टेंट के जैसे एक्ट करती है, लेकिन उसको नाम दिया है इंटीग्रल कांस्टेंट। इंटीग्रल कांस्टेंट क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट के जैसे वर्क कर दिया, उसकी वैल्यू हर जगह कॉमन होती है, और जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है इट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर 0 1 2 3। लेकिन उसको रिप्रेजेंटेशन जो है इनमरेशन का, वो जो है स्ट्रिंग के टर्म्स में होती है। आप देखोगे कैसे होता है। It is consisting of integral constant and it is represented with the keyword enum. तो जैसे हम स्ट्रक्चर को लिखने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, यूनियन को लिखने के लिए हम यूनियन कीवर्ड का यूज करते हैं, वैसे इनमरेशन को यूज करने के लिए हम इनम कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। It's short name, that is enum, and all small case. See an example of enum. आप कैसे लिखोगे, enum season, और आपने कर्ली ब्रेसेस दिए और सेमीकोलन। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको जो जो भी वैल्यूज लिखनी है, जैसे अगर इनम सीजन स्प्रिंग कॉमा समर कॉमा ऑटम कॉमा विंटर, जितने भी सीजन है आपने सारे लिख दिए, तो ये सारों को अपने एक वेरिएबल से डेजिग्नेट कर दिया कि ये सारे क्या है, सीजन। अब देखो इसमें इनम सीजन जो है दैट इज कंसिडर्ड टू बी इनम नेम, और इट कैन बी इनम वेरिएबल, ठीक है। सॉरी, इनम का नाम क्या है, जैसे स्ट्रक्ट पर हम क्या लिखते हैं, स्ट्रक्ट पर्सन, तो पर्सन हो गया स्ट्रक्चर का नाम, वैसे यहाँ पे सीजन हो गया इनम का नाम, ठीक है। अब ये जो स्प्रिंग समर ऑटम और विंटर है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, वैल्यूज, और उसको बोल सकते हैं हम इंटीग्रल कांस्टेंट्स, ठीक है। तो ये होते हैं इनमरेशन। और जैसे इनमरेशन भी सिंपली कहाँ पे यूज होता है, जब आपके पास बहुत सारे वेरिएबल के नाम हैं और आपको याद नहीं रह रहा है इतने सारे वेरिएबल के नाम, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, इनमरेशन का यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें सिर्फ कांस्टेंट्स वैल्यू होती है, जैसे स्ट्रक्चर में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है, स्ट्रक्चर में हर अलग अलग टाइप का डेटा होता है,
लेकिन सीजन में जो होता है सारे के सारे सेम टाइप के, सॉरी इनम में सारे के सारे सेम टाइप के होंगे और सारे के सारे इंटीग्रल कांस्टेंट ही होंगे, कांस्टेंट ही होगा और सारे के सारे इंटीग्रल ही होंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं इनमरेशन का। ये दिया गया है कि बाय डिफॉल्ट इंटीग्रल कांस्टेंट मतलब क्या, स्प्रिंग की वैल्यू क्या रहेगी, 0। जहां पर भी आप समर को यूज करना चाहोगे इट विल बी द वैल्यू एज 1। तो we can change the default value of an enum element during the declaration। इसका मीनिंग क्या है कि बाय डिफॉल्ट इनम का वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। जैसे एरे में इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, वैसे इनम का भी इंडेक्स जो है या कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। अगर आपको 0 से स्टार्ट नहीं करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन ये हम एरे में नहीं कर सकते। एरे में जैसे उसका इंडेक्स 0 है, एट द मैक्स उस इंडेक्स को हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद से स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन इनम का डिफॉल्ट वैल्यू अगर 0 है तो उसको हम कैसे भी वैल्यू से चेंज कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, नाउ सी हियर, पहले हमने जो ये देखा एग्जाम्पल, इनम सीजन स्प्रिंग समर ऑटम विंटर, इसमें क्या हुआ, स्प्रिंग को क्या वैल्यू गई, 0, समर को वैल्यू क्या गई, 1, ऑटम इज कंसिडर्ड टू बी 2 एंड विंटर इज कंसिडर्ड टू बी 3। और अगर आपको ये 0, 1, 2, 3 नहीं चाहिए, अगर आपको कुछ अलग वैल्यू देनी है तो आप उसकी डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज करके ऐसा कर सकते, जैसे मैंने यहाँ पे किया, इनम सीजन स्प्रिंग इज इक्वल टू 0, फिर समर इज इक्वल टू 4, ऑटम इज इक्वल टू 8, विंटर इज इक्वल टू 12। मैंने मेरे हिसाब से उनकी कांस्टेंट की वैल्यू चेंज की, तो ये मैं जब डिक्लेयर कर रही हूँ तब चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, इज इट फाइन, एम आई ऑडिबल, Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. कोई क्वेश्चन, Yes, ma'am. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? Ma'am, what will be the uses of the enumeration वही object? मैं बोल, इनमरेशन, देखो इनमरेशन मतलब क्या है, अभी जैसे मुझे क्या करना है, डेज होते हैं राइट, तुम्हारे वीक के डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इंस्टेड ऑफ संडे, मंडे, जहां पर भी 1 लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके बजाय मैं क्या लिख देती हूँ, जैसे मैंने किया वेरिएबल W इज इक्वल टू संडे। इसका मीनिंग W की वैल्यू क्या रहेगी, अगर मैंने Sunday. इनम में उसको संडे को 0 करके लिखा है तो W की वैल्यू क्या रहेगी, 0। अगर मैंने इनम में संडे की वैल्यू को 1 लिखा है तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, तो जहां पर बहुत सारे, सपोज आपके पास 100 ऐसे नाम हैं और वो 100 नाम आपने लिख दिए हैं और आपको सिंपली 100 नंबर्स है, 100 नंबर्स आपको ये बताना है कि टू जो है, सॉरी मुझे आपका रोल नंबर याद नहीं रहता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे आपका रोल नंबर याद नहीं रहता, तो मैंने क्या कर दिया, आपका इनम और मैंने पर्सन करके एक डेटा टाइप बना दिया, और फिर मैं क्या करती हूँ, आपके जो जैसे रोल नंबर वाइज आप सबके नाम लिख दिए, और मुझे जहां पे लिखना है कि W, सपोज मुझे देना है कि W इज इक्वल टू अक्षय, ऐसा कुछ लिख रही हूँ, तो W इज इक्वल टू आपका जो रोल नंबर है वो W की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि मुझे आपका रोल नंबर नहीं याद है, मुझे आपका नाम याद है, इसीलिए मैं डायरेक्टली क्या करती हूँ, W इज इक्वल टू अक्षय। गेटिंग दिस? तो जहां Yes, पे ma'am. आपको नंबर याद नहीं रह रहा है और आपको नाम से उसको डेजिग्नेट करना है तो आप तब क्या यूज करते हो, इनम। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, तो सी दिस केस, अब आपने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया इनम। अब आप कैसे इनम की वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, इनम को लिखने के लिए मैंने पहले इनम को डिक्लेयर कर दिया, इनम बुलियन और फॉल्स कॉमा ट्रू। अब इसमें क्या हुआ, ऊपर मैंने एक इनमरेशन लिखा है जिसका नाम है बुलियन और उसमें 2 वैल्यू है, फॉल्स और ट्रू। तो फॉल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट Zero. क्या है, 0, और ट्रू की वैल्यू 0. बाय डिफॉल्ट क्या है, 0. यस, वेरी गुड।
तो फॉल्स की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 इसलिए 0, और ट्रू की वैल्यू ऑब्वियसली 0 के बाद 1 आता है तो ट्रू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ओके अब मुझे क्या करना है, इस इनम को यूज करना है। तो इनम को यूज करने के लिए, जैसे अगर मुझे स्ट्रक्चर को यूज करना है तो पहले मुझे स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है, वैसे भी यूनियन का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है। वैसे ही जैसे %p1 लिखा था, वैसे ही मैं यहाँ पर इनमरेशन का भी वेरिएबल क्रिएट करती हूँ। तो इनमरेशन का नाम लिखा बुलियन और उसके वेरिएबल का कुछ नाम दिया। तो यहाँ पे जो मेरे वेरिएबल का नाम है दैट इज व्हाट, चेक। ओके तो ये जो चेक है इसको हम क्या बोलते हैं, इनम टाइप वेरिएबल। क्लियर? तो बुलियन इज द इनमरेशन नेम एंड चेक इज द इनमरेशन वेरिएबल। ठीक है, अब इसके बाद आपको सिंपली इनमरेशन को अगर यूज करना है, देखो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। जैसे आप स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हो, यूनियन को डिक्लेयर करते हो मेन के पहले, वैसे ही मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया इनम को। और इनम को क्या लिखा, आई हैव टेकन इनम एंड वीक। ओके 1 सेकेंड, ओके इज दिस विजिबल नाउ, इनम और फिर हमने क्या किया, वीक लिया एज अ नेम ऑफ द इनमरेशन और उसमें मैंने लिख दिया सन मन ट्यूब वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ये मुझे अच्छी तरीके से याद रहता है, लेकिन मुझे ये याद नहीं आता है थर्सडे को 4 बोलना है या 5 बोलना है या 3 बोलना है या 2 बोलना है। तो मैंने क्या कर दिया, वीक जो है ये इनमरेशन लिया, उसका वेरिएबल क्रिएट किया टुडे। ठीक है, कोई भी वेरिएबल का नाम लिया और मैंने जब लिखा टुडे इज इक्वल टू वेडनेसडे, तो टुडे की डेट क्या हो जाएगी, सॉरी टुडे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं सी आउट टुडे करती हूँ तो क्या आएगा, वेडनेसडे। वेडनेसडे आएगा या कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। सी इट इज इंटीग्रल कांस्टेंट, मतलब वो कांस्टेंट है और इंटीग्रल है, इसलिए जब मैं टुडे इज इक्वल टू वेडनेसडे लिखती हूँ, देखो जैसे मैंने बोला था कि W इज इक्वल टू अक्षय लिख रही हूँ, इसका मीनिंग क्या आ रहा है, 3 हाँ राइट वेरी गुड, कि यहाँ पे क्या आ रहा है 3, क्योंकि संडे को 0 वैल्यू हुई, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2 और वेडनेसडे को 3, इसीलिए हमने क्या किया टुडे इज इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है? तो जब मैं सी आउट टुडे करूंगी तो आउटपुट क्या आएगा 3। अब मुझे यहाँ बोलो, मैं सी आउट डे लिख रही हूँ और मैंने क्या किया टुडे प्लस 1, टुडे प्लस 1 मतलब क्या, वेडनेसडे प्लस 1, टुडे की वैल्यू क्या है वेडनेसडे, इसलिए +1 मतलब आगे जा रही हूँ, दैट मीन्स थर्सडे। तो ये थर्सडे प्रिंट करेगा या 4 प्रिंट करेगा, 4 यस 4 प्रिंट करेगा। विल प्रिंट 4। समझ में आ रहा है? थर्सडे नहीं प्रिंट करेगा, ये सिर्फ प्रिंट क्या करेगा, इट विल गिव यू आउटपुट एज 4। ठीक है, डे एंड आउटपुट विल बी 4। इज इट क्लियर नाउ? Getting? yes ma'am Yes ma'am. Enumeration is acting as what? It is acting as integral constant. जहां पे आपको नाम याद रह रहा है और नंबर याद नहीं रह रहा है तो आप क्या कर सकते हो, enumeration का यूज कर सकते हो और सिंपली जो भी आपका वेरिएबल है, मैंने अगर ऐसे लिखा जो इनम का नाम है उसके वेरिएबल और वेरिएबल में उसकी कोई वैल्यू लिख दी, तो उस वैल्यू की जगह उसका जो नंबर है वो डिस्प्ले हो जाएगा और वो आप यूज कर पाओगे। ठीक है, getting this? So yes this ma'am is known as enumeration yes, and enum का यूज कहाँ पे है, जहां पे सिर्फ एक ही वैल्यू यूज करनी है। अब इसमें और एक बड़ा यूज है enum का कि इतनी सारी वैल्यूज है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, लेकिन मुझे कोई भी एक ही वैल्यू उसमें से यूज जब करनी होती है तब जनरली आप enumeration का यूज करते हो। तो बहुत सारा कोड आपका नीट हो जाता है जब आप enum का यूज करते हो। जनरली आजकल जो है कोई भी C++, Java, .NET, they are not making the use of enumeration, but this is a very useful concept in case of C++. जो भी कंपनी C++ as a programming language use करती है वो enumeration, class और structure का बहुत अच्छे से यूज करते हैं। जहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम यूज होता है वहां पे आप यूनियन को यूज करते हो।
इतना आपको यूज होना चाहिए कि हमने 3 डेटा स्ट्रक्चर्स देखे, 3 डिराइव्ड सॉरी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप देखे, स्ट्रक्चर, यूनियन और इनमरेशन। कल के लेक्चर में हम लोग डिटेल में किसके बारे में देखेंगे, क्लास, व्हाट इज क्लास, एंड वी आर गोइंग टू सी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ क्लास। ओके, okay, is it clear? So Yes, ma'am. 10 minutes Yes, ma'am. Yes. training, and if you are wanting to ask Yes, ma'am. uh, if you are wanting to ask anything related to this, you all are welcome and you can ask the things. So this was today's lecture. What was there? Anything, any things to be asked? Welcome. सबके कंसेप्ट क्लियर हो गए? श्योर? Yes, ma'am. Okay, any things to be asked? I hope you all are taking the things from the PPTs and also from the blog. You considered about those who are not getting, direct second year students, those who are not getting it through the Google Classroom. आप, क्योंकि हमने आपको Google Classroom में ऐड नहीं किया है, तो आप क्या कर सकते हो, ब्लॉग पे जा सकते हो, मेरे ब्लॉग पे सारे वेरिएबल्स आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे Kenjan 1 for you students also, जो students है जिनको notes चाहिए, मेरा my PPTs are self explanatory, you can go through those PPTs. आप kenjan1.wordpress.com आप अगर टाइप करते हो, आपको स्टूडेंट्स कॉर्नर के अंदर OP students इसके अंदर आप जाओगे, और videos to teach C++, these videos are wonderful, kindly go through these videos anytime you find animated videos है, much more self explanatory, kindly go through it, ठीक है। और जिनको अगर नोट्स चाहिए तो OP स्टूडेंट्स के अंदर जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, यू विल कम टू नो अबाउट कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या लिया था, और यूनिट वाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर है, अगर आपको देखोगे हर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर लास्ट नवंबर दिसंबर 2019-20 तक जो भी क्वेश्चन पेपर्स है वो सारे के सारे पेपर सॉल्व करके यहाँ पे रखे हुए हैं। इनका सोल्यूशन भी अवेलेबल है, तो आप काइंडली चेक करो, वहां पे आपको समझ में आएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा है, तो आपको किस तरीके से आंसर लिखना है, ठीक है। दीज आंसर्स आर रिटन बाय माई सेल्फ, सो इसलिए आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लिखना है आपको आंसर। उसके अलावा मैं चाहूंगी कि आप इसके थ्रू भी जाओ, दैट इज व्हाट एक क्वेश्चन बैंक भी है। अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक आपके लिए अवेलेबल करके दी है कि कौन से यूनिट में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब ओके, यहाँ पे अभी PDF नहीं क्रिएट हो रही है, पर आप डाउनलोड करोगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके साथ जो हमने क्लास में, मैंने जो अभी तक के जितने 2016-17 ऑनवर्ड्स हम लोग सारी यूनिट टेस्ट ले रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो जितने भी मैंने यूनिट टेस्ट प्रीलियम जो कुछ भी लिया है उसका सोल्यूशन के साथ सारा अवेलेबल है, आप वहां से सारा एक्सेस कर सकते हो। ये सारा मैंने गूगल क्लासरूम में नहीं शेयर किया है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द ब्लॉग एंड देन एक्सेस इट, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल टू बी केप्ट इन द गूगल क्लासरूम, इट इज गोइंग टू क्रिएट कंफ्यूजन, इसीलिए यहाँ पे ब्लॉग में आपको सब कुछ अवेलेबल किया है। उसके साथ NPTEL के वीडियोस भी आपके साथ शेयर किए हैं, आप उनके थ्रू भी देखो, जिसको बहुत ही डिटेल में जाना है C++, और इसी दीज NPTEL वीडियोस जो है ये IIT के प्रोफेसर्स लेते हैं, और उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो काफी डेप्थ में होता है। जिनको अगर आपको डेप्थ में जाना है किसी टॉपिक के अंदर, तो आप NPTEL वीडियोस के थ्रू भी देख सकते हैं, और मैंने जो सजेस्ट किया था एनिमेटेड वीडियोस वो आप देख सकते हो। जिनको ई बुक अवेलेबल नहीं हुई है, यहाँ थ्रू दिस ऑल्सो दिस लिंक यू कैन गो थ्रू एंड डाउनलोड द ई बालगुरु स्वामी फ्रॉम देयर। नोट्स के ऊपर मैं आपको बात कर रही थी कि आप नोट्स के ऊपर जाके यू कैन एक्सेस द नोट्स। सी अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं टिल 2028 जितने भी लेक्चर्स हुए, और आज का जो भी लेक्चर है वो सारा अपलोड हो जाएगा, और यहाँ पे आप सारा
देख पाओगे। सारे लेक्चर्स जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, व्यू में जाओगे, इट विल बी एबल टू, यू आर बी एबल टू डाउनलोड दिस थिंग। सो काइंडली टेक एन एडवांटेज, प्लीज इसको आप यूज कीजिए। जो भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स है और जो नहीं भी है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है, वो गूगल क्लासरूम के थ्रू आप सिर्फ नोट्स एक्सेस कर सकते हो, पर यहाँ पे आप सोल्यूशंस और क्वेश्चन पेपर्स भी देख सकते हो। सो काइंडली गो थ्रू दिस। Okay, so should I close the meeting today, or anyone wishes to speak up anything? Do you want to speak up anything, or is it is okay? Yes. No, ma'am. Okay, so I consider that you have understood everything, and we are now going towards the end of this meeting. Those who are not knowing about C++, आज 3:30 बजे आप लोगों के लिए C++ के प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस ली है, तो काइंडली अटेंड। छोटे छोटे बेसिक से वहां से स्टार्ट होगा, सो काइंडली अटेंड एंड टेक अ फुल एडवांटेज ऑफ इट। थैंक यू सो मच। आई एम एंडिंग द मीटिंग। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव गिवन योर प्रेजेंटी। अगेन रिमेंबर, प्रेजेंटी जब आप दे रहे हो तो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स की जो प्रेजेंटी है वही मैं कंसिडर करूंगी, and I will be serious regarding that. Okay, thank you so much. Anyone wants to speak up is welcome. No, ma'am. Okay, thank you. Should I end the meeting then? Yes, ma'am. Chat में अभी Yes, ma'am. Okay, chat में 71 लोगों का दिख रहा है। My voice was not audible. It was audible. Yes, ma'am. Audible था? Audible, ma'am. Okay, ठीक है। Okay, thank you.